Students, hope you are doing well. In previous class, we learned nutrition in animals, and in this class, we will discuss about nutrition in amoeba. Before going into the details of nutrition in amoeba, we should know about amoeba in short. The species of amoeba are single-celled animals, protozoans. They have no chlorophyll or cell wall. They live in ponds, ditches, other moist places, and in the soil. Amoeba has no mouth, so it pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for capture of food and locomotion both. Some amoebas are parasites. Amoebas eat algae, bacteria, plant cells and microscopic protozoa. Nutrition of amoeba involves 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है। इसमें क्लोरोफिल या सेल वॉल नहीं होता है। यह पॉन्ड्स, डिचेस यानी कि खाई, दूसरे मॉइस्ट प्लेस और सॉइल में पाया जाता है। अमीबा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिससे अमीबा खाना भी खाता है और लोकोमोशन भी करता है। कुछ अमीबा पैरासाइट्स होते हैं। अमीबा एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स और माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ को खाता है। अमीबा के न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। So let's start from step 1, ingestion. Ingestion involves taking in food. In amoeba, there is no mouth. Therefore, intake of food may occur at any part of the body, but it usually takes place at the advancing end, that is pseudopodia. This process of obtaining food is called phagocytosis. इंजेशन प्रोसेस में सिर्फ खाना बॉडी के अंदर जाता है। क्योंकि अमीबा में माउथ नहीं होता है, इसलिए अमीबा खाना को स्यूडोपोडिया के थ्रू अपने शरीर में लेता है और स्यूडोपोडिया के थ्रू खाना शरीर के अंदर लेने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। स्टेप 2, डाइजेशन. Digestion is the breakdown of complex food molecules into simpler molecules through a series of chemical reactions carried out by various enzymes. Like in the presence of amylase, starch is converted into sugars. In the presence of proteins break down into amino acid. In the presence of lipase, fats converted into fatty acids and glycerol. डाइजेशन प्रोसेस में एंजाइम्स के द्वारा सीरीज में केमिकल रिएक्शंस होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स जैसे एमाइलेज के प्रेजेंस में स्टार्चेस जो है वो सुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम प्रोटीन्स के प्रेजेंस में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर के एमिनो एसिड बना देता है। एंजाइम लाइपेज के प्रेजेंस में फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। In amoeba, the digestion of food takes place within the food vacuoles, which thus act as temporary stomach. क्योंकि अमीबा में स्टमक नहीं होता है, इसलिए डाइजेशन प्रोसेस फूड वैक्यूल्स में होता है और उस फूड वैक्यूल्स को टेम्पररी स्टमक कहा जाता है। स्टेप 3, एब्जॉर्प्शन. Absorption means taking up digested nutrients into the cell of living organism. इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। इन अमीबा, द soluble foods resulting from digestion diffuse through the food vacuoles into the surrounding cytoplasm. As absorption proceeds, the food vacuoles decreases in size till only undigestible matter is left in them. अमीबा में डाइजेशन के बाद जो soluble food होता है वो फूड वैक्यूल्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में चला जाता है और जैसे ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फूड वैक्यूल्स का साइज छोटा होने लगता है और उसमें सिर्फ अनडाइजेस्टेबल मैटर ही रह जाता है। स्टेप 4, assimilation. The absorbed food is synthesized into protoplasm. This is called assimilation. Some food is synthesized into storage product like glycogen and fats. Synthesis is added by enzymes. Assimilation प्रोसेस में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो प्रोटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो जाता है और कुछ ग्लाइकोजन एंड फैट्स में भी सिंथेसाइज हो जाता है। ये सिंथेसिस प्रोसेस एंजाइम की मदद से होता है।
Step 5 egestion. The removal of the undigested food is known as egestion. जो undigested foods बॉडी के अंदर रह जाता है उसका बॉडी से बाहर चला जाना egestion कहलाता है. In amoeba, egestion occurs from any part of the body. अमीबा में egestion प्रोसेस जो है बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है. जैसे इंजेशन बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता था, उसी तरह से इजेशन भी बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है. अब हम लोग डायग्राम के थ्रू इस टॉपिक को समराइज करेंगे. 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे न्यूट्रिशन में, वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन. अब अमीबा के डायग्राम में आते हैं. ये अमीबा का डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है और अमीबा के सामने ये फूड पार्टिकल्स है. अब इस फूड पार्टिकल्स को जब अमीबा देखता है तब वो क्या करेगा, अपने आउटग्रोथ को बढ़ाएगा, यानी कि सूडोपोडिया को फूड पार्टिकल्स की तरफ बढ़ाएगा. बढ़ाने के बाद उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, फिर उसको अपने अंदर ले लेगा. ये दोनों आउटग्रोथ जो है आकर के यहाँ पर ज्वाइन हो गया. ज्वाइन होने के बाद वो फूड पार्टिकल्स अंदर चला गया और अंदर जो ये सर्कल आपको दिख रहा है इसी को फूड वैक्यूल्स कहा जाता है. अब इस फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन स्टार्ट हो गया. ये स्टेप 2 हो गया. एंड स्टेप 3 और स्टेप 4 एक ही डायग्राम में मैंने बताया है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एसिमिलेशन भी हो रहा है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है और फिर वो एसिमिलेट हो जा रहा है, यानी एक दूसरी जगह फैल जा रहा है. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जा रहा है वो बॉडी के इस पार्ट से बाहर की तरफ चला जा रहा है, जिसको क्या कहेंगे, इजेशन. दैट्स इट.